Hi, this is Navya from White Falcon Publishing. Today I'm going to be in conversation with Samar Mandke, the author of You Can Automate. Well, this book is such a helpful guide for professionals and students who want to master Excel automation with no prior coding experience required. Unlike Synctus heavy manuals, it focuses on real world problem solving, process optimization, and interview ready reasoning. You will learn to automate repetitive tasks, reduce errors, and design scalable tools for finance, HR operations, analytics, and more. Each chapter carries a unique theme with case studies, adaptable templates, and best practices like error handling, dashboards, and user forms. Expect 200 plus subroutines, 15 plus mini projects, 100 plus interview questions, and 20 plus code optimization techniques. With lifetime support, this book equips you to impress in interviews and deliver solutions organizations will trust. So, Samar Mandike sir is with us today. First of all, you are welcome, sir. I am really Thank you. excited to have a conversation with you. But before that, I would like you to tell us something about yourself. Please, sir. So, to the viewers, my name is Samar Mandke. I am born and brought up in Mumbai. Professionally, I am a field service engineer. So, if you see my theme of the book, it does not need any code or prior coding experience. From the same background, I am. So, my primary job is to repair the medical equipments, what we see, robots or CTs and MRIs. That is my primary job. Primary job. I have 16 plus years of experience in that field, and along with that 16 plus experience, 10 plus experience, I'm designing this automation techniques on a local level, which is helping me on a day-to-day basis, and my team members on a day-to-day basis. That's a nutshell about me. Okay, thank you so much for introducing yourself. And now I am moving on with the questions. So the first question is, sir, डेली ऑफिस लाइफ में हम सब काफी रेपिटेटिव एक्सेल काम करते हैं. आपके लाइफ का वो फर्स्ट रियल मोमेंट क्या था जब आपने सोचा इसको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा? ये काफी एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि अगर आपने मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखा है तो मैं सिर्फ मेरा काम है स्क्रू ड्राइवर्स पकड़ना, सिस्टम को रिपेयर करना, पेशेंट्स की हेल्प करना, सर्जन्स को ट्रेन करना। ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन जब मैंने 2010 में मेरा करियर स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा यार, एक्सेल मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर पकड़ना है, काम करना है एंड घर जाके ये करना है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा मेरा वर्कलोड बढ़ गया, एंड देन आई फाउंड कि मैं कुछ चीजें ऐसे थी कि मुझे वो बार बार सेम चीजें करनी पड़ रही थी। एंड जो मेरा 100% टाइम था उसमें से 50% ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग वॉज इन द एडमिन वर्क। जैसे कस्टमर की कंप्लेंट्स की रिपोर्ट बनानी है, जैसे कि मुझे कुछ अपग्रेड्स आया है, एक्टिविटीज करनी है, तो 50 लोगों को ईमेल्स करनी है। तो 50 ईमेल्स करने के लिए अगर मैं 1 मिनट भी पकड़ के चलूं तो 50 मिनट्स है, और ऐसे मुझे महीने में 10 बार करना पड़ता है। तो 1 घंटा इंटू 10, तो 10 आवर्स आई हैव लॉस्ट जस्ट डूइंग नॉन प्रोडक्टिव वर्क। मेन काम तो मेरा हो ही नहीं रहा है। तो उस मोमेंट पे मुझे लगा कि इसको कहीं ना कहीं हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जब ऑटोमेशन की मैंने सोचा, तब मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के पास गया कि इससे कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, हर बार आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना पड़ता है फॉर दैट सॉफ्टवेयर, एंड वो अब वायबल नहीं है एक अर्निंग एम्प्लॉय के लिए, या एक जो एम्प्लॉय है जिसने अपना जस्ट करियर स्टार्ट किया है, जो बल्कि सॉफ्टवेयर है। तो मैंने उस मोमेंट पे सोचा कि एक्सेल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने खुद पहले सीखना चालू किया, एंड तब मैंने सोचा कि इसको हम एक क्लिक के द्वारा कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो एक काफी इमोशनल एंड टर्निंग पॉइंट था जो मेरे करियर का, जो मैंने उस मोमेंट पे ये सोचा कि ये मुझे करना पड़ेगा, दिस इज द राइट टाइम। Okay, you have done something
वंडरफुल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सर, बहुत से लोग कहते हैं ऑटोमेशन सीखने का टाइम ही नहीं है। आपके एक्सपीरियंस में ऑटोमेशन कैसे डेली स्ट्रेस कम करता है और मेंटल लोड रिड्यूस करता है? ऑटोमेशन एक नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है। और हम अगर टाइम की बात करें तो हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जैसे हम कोई अपना पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, थिंकिंग कि मुझे अगले 10 साल में इसके रिटर्न्स मिलेंगे या 5 साल में रिटर्न्स मिलेंगे। ये सेम चीज ऐसे है। आज अगर मैं 2 दिन में 2 दिन का मैं समय अगर इन्वेस्ट करता हूँ ऑटोमेशन सीखने के लिए, वो 2 दिन जो मैंने ऑटोमेशन सिखाया है, वो 2 दिन मुझे अगले पूरे 1 साल तक या 2 साल तक मुझे तकरीबन 3-4 घंटे डेली का सेव कर सकता है। सो अगर कोई कहता है कि ऑटोमेशन सीखने का टाइम नहीं है, तो आई विल से कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट यू विल डू टू योर सेल्फ टू अपग्रेड योर सेल्फ। एंड आपका ही टाइम बचेगा एंड आप ही उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क आप कर सकते हो। ओके ओके। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम एवरेज प्रोफेशनल्स की बात करें जैसे कि एचआर, सेल्स या ऑपरेशंस, बुक का कौन सा ऑटोमेशन एग्जाम्पल है जो वो नेक्स्ट डे से ही अप्लाई कर सकते हैं? सो ये बुक ही मेरा पूरा एवरेज प्रोफेशनल्स के लिए है। ओके। एक एक चैप्टर मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है, आप कोई भी प्रोफेशन के हो, आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। जैसे बुक का मेरा जो कंसेप्ट है कि आपको पहले तो कहीं से डेटा उठाना पड़ेगा, चाहे आप एचआर से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप किसी भी सिस्टम से पहले डेटा उठाओगे, इररिस्पेक्टिव आपके डोमेन से है। तो ये एक मेरा चैप्टर का पार्ट है। जैसे ही आपने डेटा उठाया, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा जो आता है एकदम रॉ फॉर्मेट में आता है। आपको उसमें क्लीनिंग का बहुत जरूरत पड़ता है। सो एचआर, सेल्स, फाइनेंस, सब सब डोमेन में इसके रिक्वायरमेंट है। एंड लास्टली, जो अभी आजकल पूरे इंडस्ट्री डिपेंडेंट है डेटा ओरिएंटेड, जो रिपोर्ट्स, जो ग्राफ्स दिखते हैं अपने को। सो वो जो ग्राफ्स भी आप ऑटोमेटेड तरीके से उसको पूरा दिखा सकते हो। सो राइट फ्रॉम द टेकिंग द डेटा फ्रॉम द सिस्टम टू द ग्राफ जनरेशन, ये टोटल आप मेरे बुक के थ्रू, एक एक चैप्टर के थ्रू आप लर्न कर सकते हो इन अ बिट्स एंड पीसेस। एंड 10 chapters आर डिजाइंड टोटली। एंड इफ यू वांट टू टेल मी स्पेसिफिकली, जैसे सेल्स का होता है कि मुझे कहाँ से लीड्स आई है, वो कहाँ से मैंने उसको जनरेट करानी है, इसका अगर ट्रैक रखना है तो वो आप ट्रैक रख सकते हो, उसके रिपोर्ट्स बना सकते हो। फाइनेंस के रिलेटेड, जैसे मुझे 1000 पे स्लिप्स बनानी है सीआरएम से डेटा उठा के, तो सीआरएम से डेटा उठाया एंड देन मैंने वो प्रोसेस करके 1000 पे स्लिप्स एक साथ जनरेट की विदाउट आस्किंग एनीवन टू साइन, डिजिटली साइन के थ्रू पूरा। सो ये पूरा एक फाइनेंस के लिए ऑटोमेट हो गया है पूरा। सो इसी तरह से हर डोमेन के लिए आप इसको ये कर सकते हो। तो बुक एक टोटल एक जनरलाइज डिजाइन में है, जो हर कोई डोमेन का, हर कोई जो एक्सेल पे डेटा एंट्री क्यों ना करता हो, उसके लिए ये यूजफुल है। ओके, परफेक्ट। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफिस में काफी लोग एक्सेल ऑटोमेशन से डरते हैं, डाटा खराब हो जाएगा या फाइल क्रैश हो जाएगी। आपकी बुक कैसे रीडर्स को कॉन्फिडेंस के साथ रियल डाटे पर काम करना सिखाती है? तो सबसे पहला ये जो डर है कि मेरा डेटा क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, जी सर। सो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डेटा का बैकअप लेके रखें एंड देन उसके ऊपर काम करें। वो डेटा का बैकअप ऑटोमेटिकली कैसे लेना है, ये भी इस बुक का एक चैप्टर है। उस बुक में अगर गलती से किसी ने डेटा एंट्री गलत कर दी, उस गलत डेटा एंट्री को कैसे हैंडल करना है, जो मेरा एरर हैंडलिंग टेक्निक्स है, उसमें मैंने बताया है। और अगर
कहीं किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे दिल्ली को मैंने लिख दिया DEHLI एंड पूरा डेटा मेरा क्रैश हो जाएगा। उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी कैसे हैंडल करना है, उसको क्लीन कैसे करना है, ये मेरे पूरे बुक में मैंने बताया है। सो ऑटोमेटिकली आप जब इन चीजों को पढ़ते हो, आपको एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। डेटा खराब होना मतलब मेरा डेटा कहीं चला जाएगा, मेरे पास बैकअप नहीं है, मैं अभी डेटा खराब हो जाएगा तो क्या करूं। बट मेरे बुक के टेक्निक्स मैंने ऐसे डिजाइन की है कि आपको इन सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा डेटा खराब हो जाए। आप डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करके ये ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी हो जाएगी। ओके ओके। एंड सर, डेली लाइफ में लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ऑटोमेशन इन टेम्परेरी फिक्सेस से कैसे डिफरेंट और बेटर है? देखो, शॉर्टकट्स आपको यूज करना है फॉर अ टेम्पररी पर्पस, इट इज वेरी वेरी इजी। एंड शॉर्टकट्स बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल। आप उसके लिए एक सिस्टम में नहीं डिजाइन कर सकते। शॉर्टकट्स जिसको हम जुगाड़ भी कहते हैं, कि मुझे यस। जल्द से जल्द कोई रिपोर्ट देनी है, तो हम वो जुगाड़ करके कुछ उसको दे देते हैं। दैट इज ओके, दैट इज ओके फॉर अ टेम्पररी बेसिस। लेकिन आप मान के चलो कि नेक्स्ट डे आपको सेम रिपोर्ट बनानी है, आप सेम जुगाड़ लगाओगे, आप सेम वर्क अराउंड करोगे, ये आप फिर से वही लूप साइकिल में चले जाओगे, रिपीटेटिव जुगाड़। तो वो जुगाड़ को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो with the help of my book and the techniques whatever I have explained in the book. So ये जुगाड़ is a what I will say in a nutshell, जुगाड़ is a temporary fix, but if you want to go for a long run, आपको ऑटोमेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जुगाड़ भी आपको रिपीटेटिवली करना पड़ेगा एंड दिट इज द पर्सन स्पेसिफिक। दो लोग या तीन लोग उस रिपोर्ट को यूज नहीं कर सकते। ओके। एंड सर, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब कोई एम्प्लॉय ऑटोमेशन सीख लेता है तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सन को कैसे देखना स्टार्ट करती है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करना चाहता हूँ। श्योर सर। हाँ जी। क्योंकि अ, मैं एज ए इंडिविजुअल एक फील्ड सर्विस इंजीनियर हूँ। सो एक्सेल से कोई लेना देना नहीं था मेरा। जब मैंने चीजों को ऑटोमेट करना चालू किया, तो पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि इसने अपने रोज के तरीके से अलावा कुछ और इम्प्लीमेंट किया है जो इसके ही काम में हेल्प कर रहा है। जो काम बाकी लोग 8 घंटे में कर रहे हैं, मैं अगर 2 घंटे में कर देता हूँ, 2 घंटे में कर, आई हैव दैट 6 आवर्स ऑफ लिबर्टी, स्पेंडिंग दैट टाइम एज पर माई विल। पहले तो ये मैनेजमेंट की नजर में आ जाता है कि अगर सेम काम एक बंदा 2 घंटे में करता है, दूसरा 8 घंटे में करता है, तो देर इज सम स्किल डिफरेंस इन बिटवीन यस यस। दैट। सेकेंडली, आजकल हम इतने ले ऑफ्स की बात सुन रहे हैं, ले ऑफ्स की, जहां पे लोग ले ऑफ्स हो रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि उन्हें कुछ आता नहीं है। जैसे है, पहले हम टाइपिस्ट थे जो टाइपराइटर पे टाइप करते थे। सो वो टाइपराइटर इज नाउ आउटडेटेड। उन्होंने अगर खुद को कंप्यूटर सीखने के लिए अपग्रेड नहीं किया होता, तो वो टिक नहीं पाते। इट इज द सेम थिंग कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, मैनेजमेंट अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेगा एंड करियर करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि आप 100 जन की भीड़ में आप अकेले अकेले हो जाते हो जो एक ऑटोमेट कर सकता है चीजों को, जो चीजों को डिफरेंट नजरिए से देख के अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो वो एक लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव था मेरे करियर में, कि मैंने जब ये ऑटोमेशन, एक्सेल ऑटोमेशन करना चालू किया था, तो सारे लोग मुझे पहचानने लगे एज अ डेटा गाय, एज अ फील्ड सर्विस डेटा गाय, अ रेयर डेडली कॉम्बिनेशन, विच इज वेरी रेयर, कि जो स्क्रू ड्राइवर भी चलाता है एंड एक्सेल पे ऑटोमेशन भी करता है। सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जैसे मैंने ऑटोमेशन चालू किया, मैनेजमेंट ने ये रिकॉग्नाइज करना चालू किया, एंड आई हैव बीन प्रमोटेड ओवर द इयर्स फॉर दैट पर्पस। Okay, thank you. And sir, my last question from you is,
अगर आप ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट करने वाले किसी पर्सन को एक डेली लाइफ माइंडसेट या हैबिट सजेस्ट करेंगे तो वो क्या होगी? सो एक माइंडसेट की अगर बात करें, हम अननोइंगली बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हैं कि it's okay. I have just typing it. I'm just formatting it again and again 100 times without realizing that कि यार ये मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ डेटा एंट्री किया एंड मैन्युअली उसको बॉर्डर किया, एक्सेल में बॉर्डर किया। सो वो सेम चीज हम रिपीट करते जाते हैं चीजों को unknowingly. We are wasting lot of time. A 1 second wastage is also a wastage of time in Excel. सो आप डे टू डे बेसिस पे आप ये सोचो कि मैं किस चीज को ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है। ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे कि ठीक है, मैंने आज तो ये कर दिया लेकिन कल करना, फिर से करना है, तो इसको मैं एक क्लिक पे कैसे कैसे फटाफट हो जाए, जैसे मैं एंटर करूँ वो कैसे फटाफट आ जाए, तो वो एक ऑटोमेशन टेक्निक उसके ऊपर आप कैसे उसको लागू कर सकते हैं। तो वो माइंडसेट आपको देखना पड़ेगा कि आपके डेली वर्क में आप क्या चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो, क्या चीजों को जो रिपीट टास्क है जो आपका बहुत टाइम किलिंग है, वो आप देख सकते हो। स्लोली स्लोली एक एक अगर टास्क आप ले सकते हो एंड उसको कर सकते हो, वो सीखना बहुत आसान हो जाता है इसमें। Thank you for this information. And this conversation was full of meaningful advices, suggestions, and information. I got to know so much about Excel automation today. I hope the viewers and the readers also take advantage of your wonderful work because it is definitely going to help them in their careers. So, while wrapping the interview, I would like to request all the viewers to buy a copy of You Can Automate. It is available on Flipkart, Amazon, and WFP store. So, once you read the book, please do consider reviewing it and talking about it. And at last, thank you so much, sir, for joining us today. It was really nice talking to you. Thank you for taking out time for us. And yeah, thank you so much again. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक Thank यू। you.